How are you all? I hope you all must be going very well and doing your science studies very nicely. So today, students, we are going to explore the new chapter of class 5th, that is chapter number 6 about soil erosion and conservation. So students, soil is the natural resource of our earth. It supports the life in many ways. Now, why soil is so important? Because as we all know that all the plants grow in the soil only, and other than that many uses are there of which the soil becomes important and very essential factor for the survival of life on earth. Okay, so let's discuss the chapter today in a detailed manner. See students, soil is a part of the Earth's surface consisting of humus and disintegrated rocks. As the uppermost layer of the Earth, it is very important for all living things. Plants grow in soil. The soil of a place loses its fertility due to erosion. What is erosion? How and why does it take place? In this chapter, we will learn about soil erosion and different ways of soil conservation. See student, what they say. Soil हमारे अर्थ सरफेस का ही क्या है, एक पार्ट है एंड वो एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर ह्यूमस एंड डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स होते हैं, यानी कि ह्यूमस एंड डिसइंटीग्रेटेड रॉक से ही मिलकर सॉइल का फॉर्मेशन होता है एज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. क्योंकि सॉइल हमारे अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर है, इसीलिए सॉइल सभी लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन सॉइल ओनली, राइट. एंड किसी भी एक प्लेस की बट स्टूडेंट्स क्या होती है, जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी को रिड्यूस करने लगती है इरोजन की वजह से. नाउ व्हाट इज इरोजन? इरोजन क्या है, कब और कैसे होता है, इस चैप्टर में हम वही सब चीजें डिस्कस करेंगे. तो सॉइल एंड इट्स फॉर्मेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉइल इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. एज आई टोल्ड यू कि अर्थ पे लाइफ के फाउंडेशन को कौन रखता है? सॉइल ही रखता है. सॉइल प्लांट्स की लाइफ को सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड उसके बाद जो एनिमल्स में वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर सर्वाइवल. So basically, overall, we can say that soil is the substance or the resource which is ultimately required for the support of life on earth. Now, the soil is composed of 3 layers. Soil 3 layers से बनी है. सबसे पहले जो uppermost layer है, that is top soil. Okay, you can see in this picture, ये सबसे पहले layer है top soil and it is rich in humus. इसमें humus का content सबसे ज़्यादा होता है. The topsoil is fertile and is important for growing plant. ये topsoil काफी ज्यादा fertile है and यही सबसे ज्यादा important है किसी भी plants की growth के लिए. Below this layer, अब topsoil से नीचे जो layer है, that is subsoil. Okay, इससे नीचे subsoil होती है which is rich in minerals. Okay, इसमें क्या minerals का अच्छा खासा content होता है and इसके अलावा ये subsoil ही जो है इसमें parent material होता है जिससे वो सॉइल पूरी डेवलप हुई है. बिलो इज, अब सबसॉइल के नीचे एक नॉन पोरस लेयर है. सी सबसॉइल से नीचे ये पेरेंट मटेरियल है एंड फिर ये नॉन पोरस आपकी लेयर है, दैट इज कॉल्ड बेडरॉक. क्या बोलते हैं? बेडरॉक बोलते हैं. एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड वेदरिंग. एंड वो प्रोसेस जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग. The rocks break into small pieces that become smaller when rubbed by wind and water. Okay? यही rocks हैं जो धीरे धीरे छोटे छोटे pieces में break होने लगते हैं and फिर ये छोटे छोटे और small होते चले जाते हैं जब ये wind and water, ठीक है, पहले बड़े बड़े rocks टूट के small pieces में convert होते हैं and जब ये small pieces एक दूसरे के against rub होते हैं, they become more smaller. Okay? The tiny particles make clay. छोटे छोटे से particles clay बनाते हैं and medium size particles जो हैं वो क्या बनाते हैं? silt बनाते हैं. Whereas larger particles, जहाँ पे जो बड़े particles हैं, they will form sand. Weathering of rocks. Rocks की जो weathering होती है वो किसकी वजह से होती है? Due to rain, flowing water, heat and wind. Okay. Now next we have the topic of soil erosion. So as I told you that the topmost layer of the soil is carried away by wind, rain and flood. कि अब जो soil की जो सबसे topmost layer है
वो क्या होती है, विंड, रेन या फ्लड की वजह से कैरिड अवे होती है, यानी कि बहा कर ले जाता है। हवा का जो फोर्स है या रेन या फ्लड्स की वजह से सॉइल की जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है वो बह जाती है। एंड दिस कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर इज नोन एज सॉइल इरोजन। एंड इसी को बोला जाता है सॉइल इरोजन। दैट इज व्हाट कि जो ये टॉप मोस्ट लेयर जब विंड, वाटर या किसी फ्लड की वजह से कैरिड अवे होती है, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। दिस इज बीइंग द मोस्ट फर्टाइल लेयर। अब क्योंकि जो टॉप सॉइल है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल लेयर है, तो इस वजह से सॉइल इरोजन जो है सॉइल की फर्टिलिटी को लॉस कर देता है। एंड दिस इट टर्न, और उसकी वजह से क्या होता है, फील्ड्स को डैमेज होता है, प्लांट प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है, एंड धीरे धीरे वो एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इज द रेट ऑफ सॉइल इरोजन सेम एट ऑल प्लेसेस? लेट अस फाइंड आउट। तो क्या ये जो रेट ऑफ सॉइल इरोजन है वो सब जगह एक जैसा होता है? नो, they depend on the weather condition of that particular. Next is agents of soil erosion. अब सॉइल इरोजन के क्या क्या एजेंट्स हैं, यानी कि किस किस फैक्टर की वजह से सॉइल इरोजन होता है? एज आई टोल्ड यू, विंड, वाटर, ह्यूमन एक्टिविटीज, ये कुछ मेन एजेंट्स हैं सॉइल इरोजन के। लेट अस डिस्कस अबाउट ऑल दीज एजेंट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इरोजन बाय विंड। स्ट्रॉन्ग विंड्स इजिली ब्लो अवे द टॉप सॉइल। जब बहुत तेजी से जब स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती हैं, ये बहुत आसानी से अपने साथ टॉप सॉइल को लेकर चली जाती है। द एक्सट्रीम इफेक्ट ऑफ इरोजन। अब इस इरोजन का जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से जो इरोजन होता है सॉइल का, इसका जो सबसे एक्सट्रीम इफेक्ट है वो एरिड एरियाज में होता है। एरिड एरियाज मीन्स जो डेजर्ट या सेमी डेजर्ट एरियाज हैं, जहाँ पे वेजिटेशन या तो बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है। तो वहां पे मोस्ट ऑफ द चांसेस जो हैं फॉर इरोजन के, वो किसकी वजह से होते हैं? स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से होते हैं। नेक्स्ट वी हैव इरोजन बाय वाटर। हेवी रेन्स एंड फ्लड्स वॉश अवे द टॉप सॉइल एंड कॉज सॉइल इरोजन। अब सेकंड फैक्टर क्या है, सेकंड एजेंट सॉइल इरोजन का? दैट इज वाटर। यानी कि जब बहुत तेजी से बारिश होती है या फ्लड्स आते हैं, उससे भी जो टॉप सॉइल है वो वॉश हो जाती है एंड इट कॉजेज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन ऑफ वाटर। अब वाटर से होने वाला जो सॉइल इरोजन है वो सबसे ज्यादा सीवियर जो होता है हिली एरियाज में होता है, बिकॉज वहां पे रिवर वाटर काफी फास्टली फ्लो करता है ऑन द स्लोप्स लाइक दिस मेक्स अ स्लोप। अब इसकी वजह से जो स्लोप्स हैं वो वहां पे कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाते हैं। अ रिवर कैरीज अ लॉट ऑफ सॉइल विद इट। एक रिवर अपने साथ बहुत सारी सॉइल कैरी करती है। इट लीव्स सम पार्ट ऑफ द सॉइल ऑन इट्स वे, एंड कुछ सॉइल का पार्ट वो अपने वे में भी छोड़ती भी जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ सॉइल एक्यूमुलेट, सॉइल इकट्ठा होने लगती है, एंड द रिवर हैज टू चेंज इट्स कोर्स, एंड फिर रिवर को अपना कोर्स चेंज करना पड़ता है। एन एग्जाम्पल ऑफ सच रिवर, एक एग्जाम्पल यहाँ पे इस रिवर का गिवन है, दैट इज हुआंग हो, दैट इज और येलो रिवर भी इसको बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम सॉरो ऑफ चाइना भी कहते हैं, बिकॉज ये से जो है बहुत ज्यादा ऑफनली फ्लड्स भी आते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इरोजन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अब कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज भी हैं स्टूडेंट्स जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। ओके, दैट मींस ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर सॉइल इरोजन ड्यू टू देयर एक्टिविटीज, सच एज लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बड़े बड़े एरियाज है जिनको हम वुड की डिमांड या ह्यूमन सेटलमेंट को क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, कट कर देते हैं। अब इससे जो सॉइल है फॉरेस्ट एरिया की वो बेयर सॉइल हो जाती है, एंड दैट ड्राइज आउट ड्यू टू कांस्टेंट एक्सपोजर टू द सन। एंड धीरे धीरे सन के एक्सपोजर की वजह से वो सॉइल ड्राई होने लगती है, एंड उसके बाद जब बहुत तेजी से बारिश होगी या फिर हवा चलती है तो वो जो ड्राई सॉइल है वो इजिली कैरिड अवे हो जाती है। ओके, सो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। जब आप फॉरेस्ट को कट करते हो उसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। इन डिफॉरेस्टेशन आल्सो कॉजेज सॉइल इरोजन। ओवरग्रेजिंग बाय कैटल। अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में बार बार कैटल से ग्रेजिंग करवाते हैं, दैट इज वहां पे ओवरग्रेजिंग होने लगती है, सो उससे वो लैंड बैरन हो जाती है एंड इट कॉजेज सॉइल इरोजन। थर्डली, फ्लोइंग। फ्लोइंग करने से भी सॉइल लूज होती है एंड हेंस इट कॉजेज सॉइल इरोजन। ओके, now next we have soil conservation. So soil erosion reduces the fertility of the soil, as we have discussed कि soil erosion से soil की fertility reduce होती है।
Formation of new topsoil takes millions of years and is almost irreplaceable. And न्यू टॉप सॉइल के फॉर्मेशन में कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं एंड ऑलमोस्ट ये इररिप्लेसेबल है, यानी कि अब इससे क्या रिप्लेस नहीं किया जा सकता इसको. तो इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, इसलिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम टॉप सॉइल को इरोड होने से प्रोटेक्ट करें. एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल, इसी सॉइल के प्रोटेक्शन को कहा जाता है सॉइल कंजर्वेशन. अब सॉइल कंजर्वेशन कैन बी डन इन अ नंबर ऑफ वेज. नंबर वन, वी हैव एफॉरेस्टेशन. सो एक इफेक्टिव मेथड जो है सबसे पहला सॉइल को कंजर्व करने का, दैट इज एफॉरेस्टेशन, मीन्स ग्रोइंग ट्रीज. एक बड़े स्केल पे ट्रीज को ग्रो करना इज नोन एज एफॉरेस्टेशन एंड इट इज ऑल्सो द वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. This is because the roots of the trees hold the soil particles and prevent soil erosion. So by planting grass, bushes and hedges on the boundaries of farmlands, we can prevent soil erosion. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स, जब हम ट्रीज को प्लांट करते हैं तो ट्रीज की जो रूट्स है वो सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करके रखती हैं, जिससे सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है. इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रासेस, बुशेस या हेजेस को किसी भी फार्मलैंड की बाउंड्रीज पे प्लांट करना चाहिए, सो दैट हम वहां पे सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सके. नेक्स्ट वी हैव ग्रोइंग ग्रासेस. इट इज गुड टू ग्रो ग्रास ऑन द लैंड दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर फार्मिंग. एक ऐसी लैंड जिसको फार्मिंग पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता है, वहां पे ग्रासेस ग्रो करना काफी अच्छा रहता है. ओके, बिकॉज ग्रासेस जो है टॉप सॉइल को कवर करती है और उसको होल्ड करके रखती है फर्मली. Third, we have construction of dams. Flood causes a great loss to the topmost layer of the soil. Hence, dams and embankments should be built along river bank. ओके, क्योंकि फ्लड्स की वजह से सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट लेयर जो है हमारी सॉइल का, उसका लॉस होता है. इसीलिए हमें किसी भी रिवर बैंक के अलोंग डैम्स या एम्बैंकमेंट्स बनाने चाहिए. The last we have terrace farming on hill slopes. Hill slopes पे terrace farming करी जा सकती है, यानी कि एक ऐसी फार्मिंग which is done by cutting the slopes into steps or terraces. You can see this is terrace farming. यहाँ पे क्या है, ये यूजुअली हिल स्लोप्स पे होती है. यहाँ पे जो स्लोप्स हैं उनको स्टेप या टेरेसेस में से स्टेप बाय स्टेप कट कर दिया जाता है. इससे स्लोप की लेंथ रिड्यूस होती है एंड वाटर की एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो जाती है. एंड ऑल्सो रूट्स होल्ड द टॉप सॉइल, एंड उसके साथ साथ रूट्स भी टॉप सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, जिससे सॉइल इरोजन रिड्यूस होता है. एंड एवरेज सॉइल सैंपल, अगर आप एक एवरेज सॉइल सैंपल लें, उसमें 45% मिनरल्स होते हैं, 25% वाटर, 25% एयर एंड 5% ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है. Different size mineral particles such as sand, silt and clay give soil its texture. और उसके अलावा डिफरेंट साइज के मिनरल पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं, लाइक सैंड, सिल्ट एंड क्ले, एंड यही सॉइल को उसका टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं. ओके, दैट्स व्हाट ऑल अबाउट द चैप्टर एवर हियर. I hope you have must understood the causes of soil erosion, the different agents causing soil erosion, and also the preventive methods of soil erosion. And from now onwards, what we can do on our own is that we can plant more and more trees to conserve the soil and also to protect the fertility of the soil. That's all for today. Let's meet in the new session of science. Till then, keep going well and thanks to everyone.